Hello students, I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is heat. In the last session already we discussed anomalous behavior of a water with the help of Hobbes apparatus and graph between volume and the temperature of water. So now in this session we discuss about the unit of heat. Next one, specific heat capacity and principle of heat exchange. And the last one is a measurement of a specific heat मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर. सो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है. यूनिट्स ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज एंड द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. सो पिछले क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था. एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ए वाटर विद द हेल्प ऑफ Hobbes apparatus and graph between the volume and the temperature of water. So today let's start with a unit of heat. आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन कंसेप्ट रहेगा यूनिट ऑफ हीट. यूनिट ऑफ हीट. Now see, the units of heat are joule in SI units, calorie in CGS units. We know that the SI unit of heat is joule. उसका जो SI unit रहेगा वो क्या बोलो तो joule है. And CGS unit of heat is calorie. उसका जो CGS यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा वो तो कैलोरी. Understand? The SI unit of heat is a joule and CGS unit of heat is a calorie. Now see, so what is meant by 1 calorie and 1 kilocalorie of heat? हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे. What is the meaning of 1 calorie of heat and 1 kilocalorie heat? तो 1 calorie heat बोलो तो क्या और 1 kilocalorie heat बोलो तो क्या, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे. नाउ सी, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water. The amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. 1 calorie heat. Now see, 1 ग्राम वाटर का ध्यान में रखिए. 1 ग्राम वाटर का हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या बोलो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी लगती है, उस हीट को हमें क्या कहना बोलो तो 1 कैलोरी हीट. सो हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. जो हमारा 1 ग्राम का जो वाटर है, 1 ग्राम वाटर का हमें क्या है 14.5 टू 15.5 1 डिग्री सेल्सियस हमें क्या है टेम्परेचर क्या है बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगती है, उसको हमें कहना है 1 कैलोरी हीट. अंडरस्टैंड? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius from the temperature 15 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. It is called as the 1 calorie heat. उसको हमें क्या कहना बोलो तो 1 calorie heat कहना है. Understand? What is the meaning of 1 calorie heat? Now next one see, अब हम ये कर लेते हैं 1 kilocalorie heat. अब तक हमने पढ़ा 1 calorie heat, अब हम डिस्कशन करेंगे 1 kilocalorie heat. Now see, similarly the amount of heat energy necessary
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर। अब हमें क्या है, 1 किलो वाटर का टेम्परेचर हमें क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है, फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ए बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट लगती है उसको हमें कहना है 1 किलो कैलोरी हीट। द अमाउंट ऑफ हीट necessary to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called as the 1 किलो कैलोरी हीट। उसको हमें क्या कहना है, 1 किलो कैलोरी हीट। अंडरस्टैंड? So what is the difference between 1 calorie and the 1 kilo calorie? So in 1 calorie, 1 gram of water raise the temperature by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius. In 1 kilocalorie, 1 kilogram water डिक्रीजेस। एक उस वाटर का हमें क्या करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करना है, राइज करना है, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी? So this heat is called as the 1 kilocalorie heat. अंडरस्टैंड? दोनों के बीच में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो 1 किलो का जो हमारा वाटर है उसका हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना है। कहाँ से बोलो तो 14.5 टू 15.5। तो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमें हीट लगता है उसको हमें कहना है 1 किलो कैलोरी हीट। और नेक्स्ट 1 कैलोरी हीट। तो 1 ग्राम वाटर है अपना, कितना, 1 ग्राम ही वाटर है, उसका हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना है। लेकिन कहाँ से बढ़ाना है, फ्रॉम 14.5 टू 15.5। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है या कितनी हीट एनर्जी लगती है, उस हीट को हमें क्या कहना हो, तो 1 कैलोरी हीट। इट इज कॉल्ड एज द 1 कैलोरी हीट। अंडरस्टैंड? नाउ सी इट इज क्लियर दैट सो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। इससे हमें मालूम हुआ कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। Understand? So 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. So these are the units of heat. So these units are very useful in the numericals. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात का क्या है, ध्यान में रख लेना है। So all of you understand? Now write down what is meant by 1 calorie heat and 1 kilocalorie heat. So देखिए, now see. So what is the meaning of 1 kilocalorie and write down 1 calorie heat. फर्स्ट हम लिखेंगे 1 calorie heat, 1 calorie heat. Write down now the amount of heat, necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 calorie heat. इसको हमें क्या करना है, 1 calorie heat. Now see the next one, 1 kilocalorie heat. 1 kilocalorie heat. Now see the amount of heat necessary
to raise the temperature of 1 kilogram of water, 1 kilogram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 kilo calorie heat. Is called 1 kilo calorie heat. It is clear that 1 kilo calorie is equal to 1000 calorie. Listen. So 1 kilo calorie is equal to 1000 calorie. This is the unit of heat. The SI unit of heat is a joule, and the CGS unit of heat is a calorie. Understand? Now see the next one concept. Now see specific heat capacity. So first हम discussion कर लेंगे. So afterwards we explain specific heat with the help of a diagram. तो डायग्राम के माध्यम से हमें क्या करना है, उसको समझ लेना है और उसको हमें क्या कर लेना है, एक्सप्लेन कर लेना है. Now see the next one is first one. What is the meaning of a specific heat capacity? Now see specific heat capacity. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Now see the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object. ध्यान में रखिए. The amount of heat energy is required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as the specific heat of an object. हमें ध्यान में रख लेना है, एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो यूनिट मास है, उस यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस हमें क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है. तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगती है, उसको हमें कहना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ध्यान में रखिए, यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिट मास है, ऑब्जेक्ट का जो यूनिट मास है, उस ऑब्जेक्ट के यूनिट मास का हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना. कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगती है, उसको हमें कहना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस. So this heat energy is called as the specific heat capacity. Is called as the specific heat capacity. एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कीजिए. सो ओनली दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मास, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में जो एक मैटर रहता है ना, उसको हमें क्या कहना है, मास कहना है. तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द मास. नाउ सो तो यूनिट मास का हमें क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है. तो कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है, उसको हमें क्या करना हो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर सी. ध्यान में रखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर सी. उसको किससे डिनोट किया जाता है, बोलो तो स्मॉल लेटर सी से उसको क्या है, डिनोट किया जाता है. अंडरस्टैंड? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द
small letter C. The SI unit of specific heat is a joule per degree Celsius, joule per degree Celsius kilogram, and the CGS unit is a kilogram per डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो उसका एसआई यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस ग्राम, और उसका सीजीएस यूनिट रहेगा वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? नाउ सी राइट डाउन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius. The 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of an object. Specific heat of that object. Understand? The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. Now see, the SI unit of a specific heat, the specific heat capacity, is denoted by letter C. The SI unit of specific heat, is joule per gram degree Celsius, and joule degree Celsius, joule per degree Celsius gram, and CGS unit is कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। Understand? So the SI unit of a specific heat is a joule per gram degree Celsius, and the CS unit is a calorie per gram degree Celsius. Understand? Specific heat means एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिट मास है उसका हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जो कितनी हीट एनर्जी हो उसको लगती है, रिक्वायर लगती है, तो उस ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, स्पेसिफिक हीट रहेगी। अंडरस्टैंड? एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। किससे डिनोट करते हैं बोले तो लेटर सी से उसको क्या है, डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड द सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? नाउ सी, हम एक ट्राई दिस करने के लिए दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल्स। तो हमें क्या है, एक अलग अलग 3 मेटल्स लेने, एक कॉपर का रहेगा, एक लीड का रहेगा और एक आयरन का रहेगा। तो उनको हमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी एक्सप्लेन। तो कौन सा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हीट ज्यादा क्या करता है, रिक्वायर करता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी,
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स, ध्यान में रखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ metals, ध्यान में रखिए। नाउ सी, सो फॉर दिस required material is a tray with a thick layer of wax। एक हमें क्या है, ट्रे की जरूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पर हम ट्रे निकालते हैं। नाउ सी, फर्स्ट ये अपना क्या है, ट्रे है। इमेजिन कीजिए, कंसीडर कीजिए, नाउ सी अ ट्रे थिक लेयर ऑफ वैक्स, इसका जो ये रहेगा उसमें क्या है, वो तो वैक्स, उसका थिक लेयर का वैक्स है ये। वैक्स है। नाउ सी सॉलिड स्पेस ऑफ आयन, लीड एंड द कॉपर ऑफ इक्वल मास। हमें क्या तो तीन क्या है, सॉलिड स्पेस लेने, एक क्या रहेगा, आयन का रहेगा, एक लीड का रहेगा और कॉपर का रहेगा। तीनों का मास क्या तो इक्वल है। एक बर्नर की हमें जरूरत पड़ती है, स्प्लिट लैम्प एंड लार्ज स्पीकर। एक लार्ज स्पीकर की जरूरत है और क्या है, बर्नर और स्टिक की हमें जरूरत है। नाउ सी, इसमें हम डालते हैं, एक आयन का है, ये रहेगा आयन का स्पेयर है। नाउ नेक्स्ट अपना रहेगा कॉपर का स्पेयर है। लास्ट वन अपना रहेगा लीड। ओके, नाउ सी, अब हम इसके उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। एक क्या है, वैक्स है टोटली, ये तीनों की स्पेयर क्या होता है, हमने क्या किया है, वैक्स में उनको बुड़ाया है, उनको क्या किया है, रखे सो है वैक्स में। नाउ सी टेक 3 स्पेस ऑफ आयन कॉपर लीड ऑफ इक्वल मास। हमने 3 स्पेयर लिए हैं, एक अपना है आयन का है, एक कॉपर का है, एक और लीड का है। नाउ सी पुट ऑल 3 स्पेस इन अ बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। ध्यान में रखिए, हमें क्या करना है, बीकर लेना है, जिसको हम बोलते हैं बीकर। उस बीकर में क्या है, पानी को गर्म करना है और 3 स्पेयर इसमें डालना है। अंडरस्टैंड, बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। एक बॉइलिंग वाटर में इन 3 स्पेयर को हमें क्या करना है, हॉट करना है, गर्म करना है। टेक 3 स्पेस आउट ऑफ द वाटर, गर्म पानी से 3 स्पेयर को हमें क्या करना है, निकालना है। ऑल द स्पेस विल बी एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो सभी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए बोलो तो, सभी को मालूम है एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। हमें इसको क्या बोलते, बॉइलिंग वाटर में ही रखना है। तो सभी का टेम्परेचर कितना रहना जरूरी है बोलो तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना क्या है, जरूरी है। नाउ सी पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। इमीडिएटली जब हम उसको बीकर से निकालेंगे टीडी स्पेयर को, हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं, ट्रे में रखना है। तो ट्रे में अपना क्या बोलते हैं, वैक्स है। नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पेयर गोज इनटू द वैक्स। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का डेप्थ क्या करना है, मेजरमेंट कर लेना है। When we all the space put in the wax, ये अपना जो ट्रे है उसमें जो वैक्स है उसमें रखने के बाद हमें क्या होता है, 3 स्पेयर का डेप्थ हमें क्या करना है, मेजरमेंट कर लेना। नाउ सी द स्पेयर विच ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू द वैक्स। नाउ ध्यान में रखो, दोज स्पेयर ऑब्जर्विंग द मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू द वैक्स। जो स्पेयर हमारा जो वाटर की हीट एनर्जी को ज्यादा ऑब्जर्व कर लेगा, वही स्पेयर क्या बोलो तो वैक्स को क्या है, ज्यादा हीट देगा। जो ज्यादा डेप्थ में जाएगा वो ज्यादा हीट एनर्जी किससे ऑब्जर्व करेगा बोलो तो, फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। और वही हीट वो किसको देता है बोलो तो, वैक्स को देता है। सो मोर वैक्स विल थस मेल्ट एंड द स्पेयर विल गो डीपर इन द वैक्स। ध्यान में रखिए, सो मोर वैक्स विल thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. ध्यान में रखिए,
So from figure we easily understand the iron sphere has a more depth. उसका क्या बोलो तो ज्यादा वो क्या बोलो तो iron sphere goes deepest into the wax as compared to the copper and the lead, because the copper and the lead absorb the less heat energy from the water. वो वाटर से क्या बोलो तो लेस एनर्जी को क्या कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं. lead sphere goes the least and the copper sphere goes to the intermediate. अपना जो ये है लीड है वो थोड़ा सा क्या है बोलो तो least and the copper sphere goes the intermediate. This shows that for equal rise in the temperature, the three spheres shall also different amounts of heat. Now see, all spheres having the same temperature. ध्यान में रखिए, सभी का टेम्परेचर क्या था बोलो तो 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो हीट की ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी थी वो क्या बोलो तो डिफरेंट थी. The three spheres have observed different amounts of heat. Iron sphere observe the large amount of heat as compared to the copper. So as compared to the lead, copper observe the large amount of heat. तो जो ऑब्जेक्ट गर्म पानी में जितना ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा वही क्या बोलो तो वैक्स में क्या ज्यादा डेप्थ जाएगा. दिस मीन दैट द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय स्फीयर इज डिफरेंट फॉर द थ्री स्फीयर. नाउ सी, the property of a heat observing is different of a three sphere. इस एक्टिविटी से हमें यही मालूम होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की हीट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी क्या हो तो डिफरेंट रहती है. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी इजीली अंडरस्टैंड द ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ डिफरेंट. इफ द सब्सटेंस हैविंग द सेम टेम्परेचर, अगर सभी सब्सटेंस के पास अगर टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन फिर भी जो हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उनके पास क्या हो तो डिफरेंट रहती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसके बारे में हमने डिस्कशन किया. ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी which determines the amount of heat observed by a sphere is different from the three sphere. This property is called the specific heat capacity. उस प्रॉपर्टी को हमें क्या कहना हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहना है. सो या इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम के माध्यम से प्रैक्टिकली में इसके बारे में क्या है डिस्कशन कर चुके हैं. अंडरस्टैंड. तो हमें एक ही बात ध्यान में रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी. हर एक ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम रहता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको अगर टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन जो हीट ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी रहती है उसको क्या हो तो डिफरेंट रहती है, उसको हमें कहना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट नाउ सी, if the specific heat of an object is C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is raised by the degree Celsius. ध्यान में रखिए, किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट C रहता है, उसका मास m रहता है और उसमें अगर टेम्परेचर अगर रेज होता है बाय डेल्टा C, the heat energy observed by the object is given by m into C into delta T. Understand? Next now, in the same way, if the specific heat of an object C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is decreased, अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है by delta C, then the heat energy lost by the object will be m into C into delta T. So delta T represent the change in a temperature. Delta C क्या हमें इंडिकेट करता है तो change in a temperature. So will be detail explain in the next session. इसके बारे में हम क्या हो तो नेक्स्ट सेशन में क्या है डिस्कशन कर लेंगे. ओके, टुडे स्टॉप हियर. सो इन दिस सेशन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड यूनिट्स ऑफ हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कशन किया, यूनिट ऑफ हीट एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अंडरस्टैंड. एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट, सीरीज यूनिट ऑफ हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कैलोरी हीट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 kilocalorie heat, and the SI unit of a specific heat capacity of that object. Okay, rest of it will be continued on next session.